Assalamu alaikum everyone and welcome back to another video. What we're doing today is the question answers of the chapter number 6, as people must have read from the video title. And in this video we are going to look over the most important questions that have a chance to come in your exams. Iske alawa, with these questions obviously we'll be reviewing your chapter again, and if you have any confusions regarding the chapter summary and explanation, you can head towards the video that you can see at the top right corner as a suggestion. Now you can go and check over the playlist as well, where you can find a lot of other topics for second year and also for first year English, and some general grammar topics too. So let's get right into it. Okay, so now let's heading towards the question answer section. We have the first question from the chapter. What do you know about Albert Einstein? And I think it's a question that those who haven't even read the chapters would know the answer to, because Albert Einstein is one of those scientists jinka naam all over the world all of us know, right? So can you guys comment down some of his discoveries? Yeah, why do you know him, or what do you know about him? But let's see the answer for now. Albert Einstein was born on 14th March 1857. As you mentioned everyone, he was a German-born scientist. He was a theoretical physics, mathematical physicist. He taught mathematical physics at Zurich University. He was awarded Nobel Prize in the field of physics, right? जो दो सबसे बड़ी accomplishments है Albert Einstein की, it is one obviously the theory of relativity, and then he found the relationship between energy and mass, right? The most famous E equals to mc squared equation. Yes, and why that equation is so, क्या कहना चाहिए, इतनी ground breaking क्यों थी ये development? क्योंकि इसकी वजह से they found out कि energy को हम किस तरीके से use कर सकते हैं in relationship with the mass, ठीक है, जिसकी वजह से atomic bomb जो है it actually came into being. Not exactly इसकी वजह से, लेकिन इसकी foundation की वजह से, right? Photoelectric effect यहाँ पे mention है, that's also what he developed. Question number 2 पे चलते हैं. What leads Einstein to feel a strong sense of duty towards his fellow men? अब this is a question जो कि हमारे chapter में बहुत detail में discuss हुआ है. I think Einstein ने खुद discuss किया है कि do we have any duty towards other people जिनके साथ हम रह रहे होते हैं, या फिर those who live in a society, do we have any duty to them? And actually यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि why does he feel so strongly about this duty? क्यों ये इतना इसके बारे में है कि we have to serve the society, we have to give something in return? Why? तो इसकी वजह ये है कि he believed कि whatever services we have in our life, whatever luxuries we have in our life, वो हमारे effort की वजह से हमारे पास नहीं है, बल्कि they are the direct result of somebody else's hard work and effort. और उन लोगों की जिनको हम जानते भी नहीं हैं, वी आर लिटरली नॉट अवेयर कि वो दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हैं, बट उनका हार्डवर्क और लेबर के रिजल्ट की वजह से वी हैव ऑल दीज लग्जरीज इन आवर लाइफ. सो वी आर एन्जॉइंग दैट, वी आर एन्जॉइंग देयर लेबर. सो व्हेन वी आर एन्जॉइंग समवन एल्सेस स्किल और लेबर और हार्डवर्क, तो फिर ऑब्वियसली इट्स बाय नेचर कि वी हैव टू रिटर्न समथिंग टू सोसाइटी. इफ सोसाइटी इज़ गिविंग अस समथिंग, नो मैटर व्हाट इट इज़, then we as individuals have to give back to the society in the same way we are taking from it or we are receiving from it. ठीक है? So जैसे कि we discussed कि if a person is from the field of science, they might give society back something related to innovations or technology, right? If they are a skilled person, they can help the society or serve the society with their skill. So no matter what we have to give back to the society so that a cycle keeps on going, जिसकी वजह से give and take और receiving का जो process है उससे society के हर लोग आराम से अपने आप को fulfill कर सकें, right? And I don't think it's wrong, it's very right. बिल्कुल ठीक है. Question number 3 है अब हमारे पास, and question number 3 is what is the attitude towards property, outward success and luxury? ये 3 चीज़ों के बारे में भी आइंस्टाइन ने बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अपनाया है इस चैप्टर के अंदर, राइट? बिकॉज व्हाट डिड ही मेंशन अबाउट देम? ही मेंशन्ड कि यूजुअली दुनिया में हम जो इंसान काम कर रहे होते हैं, कुछ हासिल करने के लिए वो 3 चीज़ें होती हैं. हमारे आइडियल्स 3 होते हैं एक जनरल इंसान के.
और वो क्या है कि दे माइट गेट प्रॉपर्टी, दे गेट सक्सेस एंड ऑब्वियसली द लग्जरीज इन लाइफ. हम हर कोई, अगर हम अपने आप से भी पूछें तो इनफैक्ट वी आर ऑल working hard, so much hard our entire lives because we want to get either of these three things, या फिर सारी की सारी तीनों चीज़ें. But Einstein, who could easily get them because of his skill, because of his obviously status as a scientist, he is saying कि ये चीज़ें बहुत बुरी हैं. We have to be contempt, they have to be condemned. यानी कि he doesn't want people कि वो इनके करीब भी जाएं. Contemptible from these luxuries. Okay, and he also mentioned कि अगर हमें कोई आइडियल बनाना चाहिए अपनी लाइफ में तो instead of these things what should they be? They should be truth, goodness and beauty. ठीक है. He also considers that plain living is good for the body and the mind. Simple living, उन्होंने कहा था कि I am drawn towards simple living, basic, humble, सादा ज़िंदगी, और कह रहे हैं कि इट्स गुड फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ एज वेल. तो अगर हमें ज़िंदगी में कुछ अकम्प्लिश करना है, कुछ एक्चुअली पॉपुलर होना है या कुछ बनना है, तो फिर दीज आर द मोस्ट अनरिलायबल थिंग्स. इनके पीछे हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए. वेरी गुड एवरीवन, परफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास. व्हाट इन ब्रीफ इज आइंस्टाइन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द लीडरशिप. लीडरशिप का मतलब है कि लीडर किस तरह का होना चाहिए. व्हाट शुड दे डू फॉर द पीपल, हाउ शुड दे बिकम द लीडर. ऐसा कैसे होगा कि वो लीडर बन जाएंगे. डू यू गाइस रिमेंबर एनीथिंग. ही सेड कि नो मैन शुड बी आइडियलाइज्ड. किसी भी शख्स को आइडियल नहीं बना लेना चाहिए. एंड ही ऑल्सो बिलीव्ड कि जो लोग हैं दे शुड हैव दिस राइट कि वो अपने लीडर को खुद चूज़ करें. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि उस लीडर ने क्या करना है बेसिकली. हाउ इज़ दैट लीडर सपोज टू लीड द पीपल. तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही एम्फेसाइज एथिकल एंड मोरल लीडरशिप. यानी कि एक ऐसा लीडर जिसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, वेल बीइंग ऑफ द पीपल. लोगों को वो आराम और सुकून की ज़िंदगी दे सकें. दिस शुड बी द बिगेस्ट एंड फर्स्ट प्रायोरिटी. इसके अलावा ही मैंशनड, यस बिल्कुल नताशा, कि अगर एक लीडर अथॉरिटेरियन है या मिलिट्रिस्टिक है, यानी कि वही ऑटोक्रेटिक सिस्टम वाला लीडर है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका. द सिस्टम विल डीजेनरेट. इससे बेहतर है कि हम एक कंपैशनेट यानी कि लोगों का ख्याल रखने वाले सिंपैथेटिक लीडरशिप हो, ताकि वो अमन और सुकून कायम भी करे. अगर लीडर ही ऑटोक्रेटिक है तो फिर ये सब तो आएगा ही नहीं, ज़ाहिर सी बात है. वेरी गुड. Einstein also believed the power of education in intellectual leadership. यानी कि you cannot just होप कि आप आगे बढ़ते रहें, प्रोग्रेस आपको मिलती रहे और आप एजुकेशन में नहीं हैं. तो एजुकेशन और हेल्थ और वेलबींग जो है ये हर लीडरशिप की बिल्कुल फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. अगर अब हम अपने मुल्क की लीडरशिप के बारे में पूछें तो आई थिंक एजुकेशन तो इनकी थर्ड प्रायोरिटी में भी नहीं आता. थर्ड क्या, 10th प्रायोरिटी में भी नहीं आता. राइट. And education is key to progress, right? That's what Einstein is also saying कि अगर हमें अपनी दुनिया को बेहतर बनाना है, इम्प्रूव करना है, प्रोग्रेस लेके आनी है, एजुकेशन मस्ट बी गिवन द ड्यू अटेंशन, वरना फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते. चाहिए. वेरी गुड भाई. you guys do remember the chapter. Very happy to see कि all of you are answering very greatly. फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ डिफेंस. यस. अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारे पास. व्हाट आर द इनसिक्योर फाउंडेशंस रेफर्ड एट द एंड ऑफ द लास्ट सेंटेंस ऑफ 4th पैराग्राफ. अब 4th पैराग्राफ हम ऐसे तो जाके नहीं पढ़ सकते, जाहिर सी बात है, लेकिन आइंस्टाइन ने कुछ चीज़ों का कहा था कि हमें कभी भी इन चीज़ों के ऊपर कुछ अपने एक्शंस को बेस नहीं करना चाहिए. अपने प्लान्स, अपने गोल्स हमें कभी इन चीज़ों के ऊपर नहीं बनाने चाहिए जो कि बहुत इनसिक्योर हैं. और वो क्या चीज़ें थी, वो थी ओपिनियंस ऑफ अदर्स, या फिर व्हाट अदर्स फील अबाउट यू, और हाउ दे जज यू, और व्हाट दे थिंक यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू. यानी कि दुनिया की बातें. यस, अदर्स ओपिनियन. और वी ऑल नो दिस, समहाउ वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दिस, कि जब भी हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, चाहे उसका ताल्लुक दूसरों से हो या ना हो, देयर आर सो मेनी पीपल कमेंटिंग ऑन इट कि इट शुड नॉट बी डन लाइक दिस, इट शुड बी डन लाइक दैट. I did it like this, you should do it like this too. Freaky advice, बिल्कुल ठीक.
अकॉर्डिंग टू हिम आई गैंग ऑन माई ओन गेट. यस, तो हमें सोसाइटी के अंदर दूसरों की बातें जो हैं, जो दुनिया का काम सिर्फ बातें करना होता है, सो वी हैव टू लेट देम टॉक, लेकिन उसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है. अगर हम अपने ओपिनियंस उनकी अकॉर्डिंग बनाएंगे, अगर हम अपने एक्शंस को उनकी जजमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो फिर हम कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज दीज आर द इनसिक्योर फाउंडेशंस. कल आपके साथ वो कुछ बोलेंगे, परसों के दिन वो आप ही के सामने उसी बारे में कुछ और बोल रहे होंगे. एंड व्हेन यू विल गो एंड आस्क देम कि भाई आपके कहने पे मैंने ये किया था, अब आप मुझे बताएं कि मेरा नुकसान कौन पूरा करेगा, दे विल डिनाई इन फ्रंट ऑफ यू कि हमने ऐसा कुछ कहा भी था. बिल्कुल ठीक नताशा. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. ऑन व्हाट ग्राउंड्स डज आइंस्टाइन पुट द इंडिविजुअल बिफोर द स्टेट. व्हाट ग्राउंड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि किस बेसिस के ऊपर आइंस्टाइन ये बात कह रहे हैं कि एक स्टेट से ज़्यादा अहमियत किसकी है, एक इंसान की है. वाई? स्टेट इज़ अ स्टेट, उसकी अपनी जिम्मेदारी है, उसकी अपनी गवर्नेंस है, उसे अपना काम करना है. बट आइंस्टाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेट से ज़्यादा अहम कौन है, एक इंडिविजुअल है. क्योंकि ही बिलीव्स कि एक स्टेट की प्रोग्रेस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल. अगर आपकी सोसाइटी में रहने वाले, आपके मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं, अगर उनमें क्रिएटिविटी नहीं है, अगर वो बेचारे अपनी ज़िंदगी से तंग हैं, ना उनके पास वेल बीइंग है, ना उनके पास स्किल है, ना एजुकेशन है, तो फिर ऑन द होल वो स्टेट कभी आगे नहीं बढ़ सकती. तो अगर आप स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अगर स्टेट को आप आगे लेके जाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू हैव एडवांसमेंट्स इन लाइफ, इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ, तो फिर आपने इंडिविजुअल को अहमियत देनी है, वरना फिर पाकिस्तान वाला हाल होगा. Yes, while the herd as such remains dull in thought. यानी कि एक ऐसा हर्ड, एक ऐसा जत्था, किसका जत्था, किसका ग्रुप, एनिमल्स का ग्रुप कह रहे हैं वो, those who don't value the individual, तो फिर उनके साथ क्या होगा कि वो डल इन थॉट, डल इन फीलिंग, एज गुड एज डेड. इससे ज़्यादा और कोई अहमियत नहीं है उस ग्रुप के में. वन वोट. यस, एग्जैक्टली. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. व्हाट एग्जाम्पल डज ही गिव ऑफ सर्विस बाय द स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल. अब इस क्वेश्चन में ही इज़ आस्किंग अस कि इन टर्म्स अगर हमें सर्व करना है इंडिविजुअल को, तो स्टेट क्या कर सकती है, यानी कि एक स्टेट के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां हैं कि एक इंडिविजुअल की नीड्स पूरी हो सकें. इन्होंने यहाँ पे क्या जिक्र किया था, इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट उनका है, वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि उनके प्रेसिडेंट के पास अच्छी खासी 7 पावर्स होती हैं. राइट? पीपल सेलेक्ट देयर प्रेसिडेंट डायरेक्टली, किसी और के थ्रू नहीं, बल्कि एक आम इंसान खुद अपने प्रेसिडेंट को चूज़ कर रहा है. ठीक है? तो इस तरह के जब गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जिसमें आपकी पहुंच नीचे तक हो, एक सोचो, एक अमेरिका में रहने वाला एक आम शख्स से बात बोलेगा कि भाई आई वोटेड फॉर दिस प्रेसिडेंट, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट उसको जवाब दे भी है, क्योंकि आम इंसान डायरेक्टली उसको वोट दे रहा है. तो जब ऐसा नीचे तक फैला हुआ सिस्टम है, तो इन केस ऑफ इलनेस या नीड, इस तरह का सिस्टम आप आसानी से रीच कर सकते हो उस आदमी को. ठीक है? द सर्विस ऑफ इकोनॉमिक असिस्टेंस. वेरी गुड. आपने लाइफ क्वालिटी, आपने इकोनॉमिक्स, आपने फाइनेंशियली हर इंडिविजुअल को फैसिलिटेट करना है, अदरवाइज फिर उस डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा नहीं है. व्हाट इज़ हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉर. क्वेश्चन नंबर 8. आई होप यहाँ तक सबको बात समझ आ रही है. राइट? एवरीथिंग इज़ क्लियर. क्वेश्चन नंबर 8 में जिक्र हो रहा है अ डिफरेंट ओपिनियन ऑफ आइंस्टाइन ऑन अ डिफरेंट टॉपिक, जो कि है जंगों के बारे में. व्हाट इज़ हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉर. आइंस्टाइन ने वॉर के बारे में एबॉमिनेबल बिजनेस, कंटेम्प्टेबल थिंग, वेरी गुड. एंड ही ऑल्सो मैंशनड कि मैं चाहूँगा कि आप मुझे जान से मार दें, आप मुझे शैक इनटू डिफरेंट पीसेस, लेकिन मैं जंग का हिस्सा नहीं बनूँगा. एंड बहुत एक ज़बरदस्त बात उन्होंने क्या की थी, अगर लोग चाहते तो ये बिज़नेस बहुत पहले ख़त्म भी हो चुका होता, बट पीपल डोंट वांट इट टू एंड, क्योंकि इस बिज़नेस की वजह से इनके पास बहुत सारे इनके फाइनेंशियल फ़ायदे भी हैं, इनके इकोनॉमिक फ़ायदे भी हैं, इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं. तो अगर ये जंगें ख़त्म हो जाएंगी तो वो सारे उनके इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएंगे. दैट्स वाई ही बिलीव्स कि जंगों के चलने की वजह यही एटीट्यूड है इंसानों का, वरना हम ज़्यादा तो बहुत पहले ही ख़त्म भी हो सकती थी. वेरी गुड, परफेक्ट.
अच्छा भाई, इसका मतलब यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने साइंस को एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल करने से मना ही किया है. अब ही डिड नॉट से कि आप मेरी इक्वेशन को उठा के एटॉमिक बॉम्ब बना दो, इन्होंने तो नहीं कहा था ना ये. और एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाला साइंटिस्ट भी जो था, मे बी ही डिड नॉट थिंक कि इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन होगी कि हर जिसके पास, खैर ये तो होना ही था. नो, दोज हु विल गेट द एटॉमिक बॉम्ब इन देयर हैंड्स, ऑब्वियसली वो अपनी डोमिनेंस के लिए उसे यूज़ करेंगे. कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ से हम नफरत करें, समथिंग दैट मस्ट बी हेटेड. ऐसे हेटेड कि आप उससे अपने आप को बिल्कुल दूर रखें, यू वुडंट इवन वांट इट टू कम क्लोजर टू यू. ठीक है. तो वॉर इज़ कंटेम्प्टेबल का मतलब है कि जंग एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें नफ़रत के सिवा और कुछ नहीं करना है. वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम इट. और एबॉमिनेबल बिजनेस का मतलब क्या है? एबॉमिनेबल का मतलब बेसिकली, ये बिजनेस का तो मतलब है कि आप इसको एक अपने फ़ायदे के लिए चलाएं, राइट? इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, जो भी फ़ायदा हो. लेकिन एबॉमिनेबल का मतलब होता है बहुत बहुत ज़्यादा बुरा, यानी कि समथिंग जिसके नतीजे में आपको सिर्फ बुराई ही मिले और कुछ नहीं मिले. ठीक है. मैच तो कॉलम में आते हैं. यस एग्जैक्टली. हेटफुल, बिल्कुल ठीक. यानी कि समथिंग जो कि एबॉमिनेबल मतलब इट्स बैड. एबॉमिनेबल का मतलब है कि वो चीज़ है ही गलत, वो है ही बुरी चीज़. चले भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली इसी से मिलता हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट फोर्स डज ही ब्लेम फॉर द परसिस्टेंस ऑफ वॉर. इतनी बुरी है जंग, हमें पता चल गया इनोसेंट लोग मर रहे हैं, उनकी गलती भी नहीं है, दोनों साइड्स पे यही हो रहा है, तो फिर ये क्यों चल रही है? वाई इज़ इट परसिस्टिंग? परसिस्टेंस का मतलब है कंटिन्यूस क्यों है भाई, क्यों चली जा रही है? कमर्शियल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट. क्योंकि जंगों की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुआहिदे होते हैं वेपन्स के, जिसमें हेलीकॉप्टर से लेके टैंक से लेके एक छोटी सी बुलेट भी शामिल होती है. अर्निंग, यस, एंड अर्निंग इन बिलियंस इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, इतने बड़ी बड़ी अर्निंग है. तो फिर जाहिर सी बात है फिर कोई कमर्शियल इतना बड़ा फ़ायदा देख के कोई क्यों रोकेगा? और पॉलिटिकल इंटरेस्ट का मतलब है कि अपनी डोमिनेंस बढ़ाना. अब डू यू पीपल थिंक कि अगर अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान पे हमला कर देगा? कर सकता है, लेकिन चाइना कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि चाइना को अपनी डोमिनेंस रखनी है इस खत्ते में, राइट? चाइना वांट्स टू मेंटेन देयर डोमिनेंस. बिल्कुल ठीक. तो दे आर बोथ गोइंग टू फाइट विद ईच अदर कि हम डोमिनेंट होंगे, तुम डोमिनेंट होगे. उसमें मर कौन रहा होगा? हम मर रहे होंगे. फ़ायदा किसका हो रहा होगा? अमेरिका का और चाइना का, और बाकी उन सुपर पावर्स का जो कि अपने वेपन इन दोनों को सेल कर रही होंगी. अब इंडिया और पाकिस्तान जो हैं आपस में बहुत नफरत है, बहुत लड़ रहे हैं, इतनी जंगें भी हो चुकी हैं, और आपस में ये दोनों वेपन्स कहाँ से ख़रीद रहे हैं? एक ही मुल्क से, जो कि अमेरिका है. तो इन दोनों की जितनी भी जंगें होंगी उसका डायरेक्ट फ़ायदा किसको पहुँच रहा है? अमेरिका को पहुँच रहा है, फ्रांस को पहुँच रहा है, जो कि उनको वेपन सेल कर रहे हैं. और वो वेपन्स के मुआहिदे कितने हैं? ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो जंगें हैं तो फ़ायदे हैं, और फ़ायदे भी इतने बड़े बड़े हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कोई भी जंगों को ख़त्म तो नहीं करेगा. नॉर्मल सी बात है. बिल्कुल ठीक. और यहाँ पे इन्होंने इसके अलावा एक और भी एक जिक्र किया था कि यहाँ पे जो स्कूल्स एंड प्रेस है, यानी कि लोगों को हम मेंटली ब्रेन वॉश भी कर देते हैं कि भाई यही करना है, एक जंग ही आखिरी हमारे पास है फ़ायदा, इसके अलावा और कोई नहीं है. वेरी गुड लाइबा. एंड इसराइल एक्चुअली सेल्स दीज वेपन्स. ऑलरेडी उनके कितने मुआहदे पीछे होते चले जा रहे होंगे, क्योंकि वो तो उनको शो करके दिखा रहे हैं कि हमारे वेपन्स क्या कुछ कर सकते हैं. लाइव डिस्प्ले हो रहा है उनका. तो अफसोस. चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. अब हमारे पास एक डिफरेंट टॉपिक पे क्वेश्चन है. व्हाट डज ही अपेयर टू रिगार्ड एज द मोस्ट प्रीशियस एलिमेंट इन ह्यूमन एक्सपीरियंस? इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रीशियस एक्सपीरियंस है वो किस चीज़ का है, जिसकी वजह से सब कुछ निकल के बाहर आता है? एज ही मैंशनड, इट्स मिस्ट्री या फिर मिस्टीरियस. बिल्कुल ठीक माजुबीन. और मिस्ट्री का मतलब क्या है? समथिंग वी डोंट नो, लेकिन हम उसके बारे में क्यूरियोसिटी की वजह से उस तक पहुँचें. वेरी गुड. और मिस्ट्री का मतलब है कि अगर आपके सामने एक पेंसिल
टेबल से नीचे गिर जाए तो आपके पास क्वेश्चन आए यार कि ये नीचे क्यों गिरी है. वी हैव टू डू समथिंग ताकि ये नीचे ना गिरे, राइट. वी हैव टू मे बी क्रिएट अ स्टैंड और सॉर्ट ऑफ समथिंग, या फिर पेंसिल के अंदर आप सेंसर्स लगा दें या कुछ भी. लेकिन उस मिस्ट्री की वजह से कि वाई डिड इट फॉल डाउन, यू कैन डेवलप अ बिलियन अदर थिंग्स. ठीक है. तो मिस्ट्री, दैट्स वाई ही इज़ मैंशनड इट इज़ द ट्रू आर्ट एंड ट्रू साइंस. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हम इनोवेशंस और प्रोग्रेस और डेवलपमेंट्स तक जाते हैं. इट हैज़ सच अ फोर्स कि इसकी वजह से हम रिलीजन तक भी पहुँचे. रिलीजन तक हम कैसे पहुँचे? वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, कि भाई हम इंसान पैदा हुआ, फिर वो बूढ़ा हो गया, फिर वो मर गया, अब क्या होगा उसके साथ, राइट. हमारे पास स्टार्स हैं जो नीचे आके नहीं गिर रहे ज़मीन पे. वाई? अगर हम कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो वो नीचे जाके गिर रही है. बर्ड्स कैन फ्लाई, ह्यूमंस कैन नॉट फ्लाई. तो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस वर बिकॉज ऑफ द मिस्ट्री सराउंडिंग द थिंग्स. बिल्कुल ठीक लाइबा. तो इसकी वजह ही से हम रिलीजन तक भी पहुँचे, हमने इनोवेशंस भी किए हैं. दैट्स वाई ही कंसिडर्स मिस्ट्री द मोस्ट फेयरेस्ट थिंग. मोस्ट नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ फेयरेस्ट बोलना चाहिए. ठीक है. एंड ही हैज़ ऑल्सो सेड कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, यानी कि वी स्टिल हैव सो मच टू अनकवर. और जो इंसान मिस्ट्री के इमोशन को अपने साथ रखेगा वही इन डिस्कवरीज को कर सकता है, अदरवाइज वी कैन नॉट. अच्छा भाई, व्हाट इज़ हिज बिलीफ कंसर्निंग द इमोरलिटी ऑफ द सोल. इमोरलिटी का मतलब क्या होता है? इमोरल्स, एब्सेंस ऑफ मोरालिटी, एब्सेंस ऑफ एथिक्स, आपके में अंदर वैल्यूज़ ना हो, आप में उसूल ना हो, प्रिंसिपल्स ना हो, इसका मतलब एक इमोरल इंसान है, राइट. और आइंस्टाइन के बारे में क्या था? उन्होंने ये कहा था कि एक इंडिविजुअल जो है हु ही हैज़ टू कीप एथिक्स एंड मोरल्स एज द टॉप मोस्ट कंसर्न, राइट. अगर किसी इंसान में एथिक्स और मोरल्स ही नहीं है तो फिर इसका मतलब उसे सोसाइटी में रहने का कोई उसका राइट ही नहीं है. ठीक है. बट ही ऑल्सो सेड वन थिंग कि ये सब डिपेंड करता है एक इंसान के ऊपर. सोल का मतलब है आपकी रूह. वट ही वॉज ट्राइंग टू से कि सब कुछ हमारे हाथ में, अच्छा भी और बुरा भी. देर इज़ नो गॉड बिहाइंड इट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन. यानी कि ये नहीं कि हम बोलेंगे अल्लाह खुदा का ये हुक्म था तो ये हो गया या वो हो गया. नो, ही बिलीव्स कि एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वेदर ही इज़ डूइंग समथिंग और ही इज़ नॉट डूइंग. कोई सुपर ह्यूमन ताकत, कोई अथॉरिटी नहीं है इस दुनिया में, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि आइंस्टाइन ने किन चीज़ों को आइडियल्स रखा है. ही वॉज एन एथियस्ट, यस. और किन चीज़ों को आइडियल नहीं रखा. विच थिंग्स ही सेड कि आइडियल नहीं होने चाहिए, जिसमें है ऑब्वियसली आउटवर्ड सक्सेस, आपकी लग्जरीज, और बिल्कुल ठीक, इसके अलावा और क्या चीज़ थी? आउटवर्ड सक्सेस, प्रॉपर्टी एंड लग्जरी, राइट. इनको हमें दूर कर देना है अपने आप से और आइडियल्स बनाना किसको है? ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी. यस, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स लाइफ मीनिंगलेस एंड एम्प्टी इन द आइज ऑफ आइंस्टाइन. वो क्या चीज़ है जो कि हमारी ज़िंदगी में से सब कुछ निकाल देती है या उसे मीनिंगलेस या पर्पसलेस बना देती है? एनीवन रिमेंबर? फेलोशिप ऑफ पीपल ऑफ लाइक माइंड, यानी कि वो लोग, वो आपके दोस्त जो कि आप ही की तरह सोचते हो या फिर उनके एम्स और गोल्स आपकी तरह के हों. दोज हु हैव द सेम ओपिनियन एंड व्यूज़ लाइक यू. अगर हम अपने आप को उनसे भी दूर कर देंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ फिर मीनिंगलेस हो जाएगी. यू कैन वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड, बट कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ उसमें ह्यूमर नहीं होगा, कुछ उसमें मज़ा नहीं होगा. तो इफ़ यू वांट टू बी सेन, या फिर कहना चाहिए कि ज़िंदगी में हम कुछ नॉर्मल सी रखना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन वी हैव टू सराउंड आवरसेल्व्स विद द पीपल हु हैव द सेम ओपिनियंस और द सेम व्यूज़ लाइक अस. ठीक है एवरीवन? Must not be idolized. Very good, Anavya. Yes, very good. And with these we have covered 13 questions. And अगर notes हैं आप लोगों के पास तो obviously you can find other things in the notes as well. लेकिन for the class right now अभी हम इतने questions रखते हैं. और I think अगर you people will go through these questions तो आसानी से आप लोग cover कर भी लेंगे.
चैप्टर, क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर कवर करने के लिए क्वेश्चन आंसर्स ही पढ़ने हैं, और क्या करना है, राइट? So now the question answers have finished. Don't forget to like and subscribe the video. Take care. Bye bye. Past papers में ना इसमें से आते हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं है कि नहीं आते। कहानी कौन सी चीज़ रिपीट करनी है ये भी